Hello students, children. Today I am going to start chapter 1 Water Resources from Social Studies portion. Water Resources. Chapter 1 Water Resources. Children, what is the meaning of resource? Resource means a supply of something. A supply of something that is available for somebody to use. That is available for somebody to use. सो रिसोर्स ऐसी चीज है जो किसी अन्य के लिए यूज के उपयोग के लिए किसी अन्य के उपयोग में आए. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल डेली एक्टिविटीज. A large part of water on the Earth's surface is in the oceans and seas. This water is salty and is not fit for use. Therefore, we use fresh water for our needs. Main sources of water. तो स्टूडेंट वाटर के जो मेन सोर्स है उन्हें टू पार्ट में डिवाइड किया गया. एक तो अंडरग्राउंड वाटर एंड एक दूसरा सरफेस वाटर. सो चलिए जानते हैं व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर. द मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन. द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर फ्रेश वाटर इज रेन. Farmers mostly depends on the monsoon for agriculture, but certain crops need water throughout the year. Hence, water has to be stored for such crops. बच्चों, वाटर जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है. एग्रीकल्चर भी विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है. बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं उन्हें वो जो है मानसून पर डिपेंडेंट है, बट कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए और पूरे साल भर पानी चाहिए होता है. सो इसके लिए क्या किया जाए? सो रेन वाटर को स्टोर करके रखा जा सकता है. एज रेनफॉल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री, we need sufficient and reliable supply of water throughout the year. For growing crops, this is only possible through proper irrigation systems. So, रेन वाटर जो है इक्वली नहीं होता है पूरी कंट्री में. आपने देखा होगा राजस्थान के कुछ एरिया में पानी जो है कम गिरता है. वहीं यदि हम इधर बात करें, हमारे ईस्टर्न इंडिया की बात करें, तो वहाँ की जो स्टेट्स है वहाँ बहुत अधिक पानी गिरता है. सो हमें क्या करना चाहिए? इस वाटर को हमें प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिल सके, जिसके लिए इरिगेशन सिस्टम बनाना चाहिए. मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. इंडिया में किस तरीके से फसलों की सिंचाई की जाती है या उसके लिए क्या क्या साधन यूज किए जाते हैं? वाटर फॉर द पर्पस ऑफ irrigation can be stored by building dams and reserves. इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर को स्टोर किया जाता है. इसके लिए डैम्स बनाए जाते हैं और अन्य भी मीन्स साधनों का उपयोग किया जाता है. Canals are the channels that are dug
to draw water from rivers to the fields. North India has a very good network of canals. Some of the main canals of our country are Indira Gandhi Canal, Agra Canal and Sirhind Canal. So स्टूडेंट, कैनाल जिसे हिंदी में नहर कहा जाता है, भारत में नहरों द्वारा इरिगेशन बहुत की जाती है। खासकर नॉर्थ इंडिया जो पार्ट है, मीन्स इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, वहाँ नहरों, क्योंकि वहाँ नदियाँ बहुत हैं, इसलिए नहरों का निर्माण किया गया है ताकि इरिगेशन किया जा सके। ओके, नेक्स्ट, wells and tube wells. Wells and tube wells. In villages, people dig wells to draw underground water to the surface. When the underground water is very deep, holes are brought with the help of drilling machines. Pipes are put into these bores to bring water up with the help of an electric pump. Such wells are called tube wells. Tube wells are widely used in the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat for irrigation. So students, इंडिया में गांव में लोग जो है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं फॉर इरिगेशन। ओके, इंडिया के जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात स्टेट में ट्यूबवेल्स एंड वेल्स का यूज अधिकतर किया जाता है इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट, टैंक्स, TANKS, टैंक्स। In the peninsular plateau, it is difficult to dig the ground because the land surface is made up of very hard rocks. Therefore, people collect water in tanks and ponds during the rainy season. The collected water is used for irrigation. Tanks are commonly used in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. In towns and cities, water is supplied to houses through taps and pipelines. In villages, people get water from a well or a tank. So स्टूडेंट, जो पेनिनसुलर प्लाटो का जो एरिया है, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि वेल या ट्यूबवेल्स खोदे जा सकें, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है वह हार्ड रॉक से मिलकर बनी हुई है और सो यहाँ जो है हार्ड रॉक्स अधिक हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ वेल और ट्यूबवेल खोदा जा सके। इसलिए इन इलाकों में वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक्स का निर्माण किया जाता है या पॉन्ड्स का निर्माण किया जाता है, ताकि बरसात का जो वाटर है वह इस टैंक या पॉन्ड्स में जमा हो और बाद में इसे इरिगेशन के पर्पस के लिए यूज किया जा सके। ओके, डैम्स आर स्ट्रॉन्ग वॉल्स built across rivers to hold back the flow of water. Dams are strong walls built across rivers to hold back the flow of water.
पानी के बहाव को रोकने के लिए डैम नदियों पर डैम का निर्माण किया जाता है. These walls have special gates called sluice gates, which are opened and closed to manage the flow of water. ये जो डैम्स होते हैं इनमें ऐसे गेट्स बनाए जाते हैं जो जिन्हें ओपन और क्लोज किया जा सके जरूरत पड़ने पर. वाटर टू स्टोर्ड इन अ रिजर्व formed behind the dam. Canals take this stored water to the fields for irrigation. So बड़ी बड़ी नदियों पर जो है डैम्स का निर्माण किया जाता है ताकि पानी को रोका जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उस पानी का यूज़ इरिगेशन के लिए किया जा सकते. और इन डैम्स के में नहरें कैनाल्स बनाई जाती हैं जिस कैनाल्स के थ्रू वाटर जो है फील्ड्स में तक पहुंचता है. नाउ स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ डैम्स. डैम्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. डैम निर्माण से बहुत सारे यूजेस भी होते हैं. जैसे डैम के निर्माण से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन अ डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट विच रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द force of water is called hydroelectricity. Hydro means water. So students, use of water से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. बिकॉज इन डैम्स में क्या होता है, जो वाटर होता है उसे काफ़ी ऊंचे से नीचे गिराया जाता है जिससे टरबाइन है उसकी ब्लेड्स जो है मूव होती है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो इस इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O होता है. वाटर का फॉर्मूला H2O होता है. H2O मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है. डैम्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लोट्स. डैम जो है वो फ्लोट को कंट्रोल करने में फ्लोट को कंट्रोल करता है. डैम्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, ब्रीडिंग. डैम्स आर एन आइडियल प्लेस फॉर फिशिंग. डैम जो है फिशिंग के लिए भी आइडियल प्लेस है. डैम्स में मछली पालन भी किया जाता है. सो ओके स्टूडेंट्स, rest part of the lesson I will continue in my next video. Thank you.